बोल रहे हैं? حضرت میرا نام جلال الدین ہے، کرناٹک سے بول رہا ہوں۔ یہ ہمارے ایک دوست اچھا ہے، یہ سلمان ندوی کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں۔ تو کیا ہاں ہاں ہاں۔ سلمان ندوی کو رحمت اللہ علیہ بولنا جائز ہے؟ بھائی ایسا مسئلہ ہے، دار تک پوچھا جائے تو ہم لوگ صحابہ خاموشی کا اختیار گستاخ کیے ہیں۔ آپ تو دیکھیے، آپ تو مولانا ہے، تھوڑا اپنے علم سے بتا دیجئے نا۔ سلمان ندوی جو صحابہ کا گستاخی کرتا تھا وہ تو معلوم ہے آپ کو، ہے بھائی نا؟ گستاخی کے بارے میں یہ آیا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کس کا جنازہ، بتایا فلاں آدمی کا ہے، تو آپ نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بغض رکھتا ہے دل میں، جی اور ایک آدمی جب بغض رکھتا ہے اس کی جنازہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، جنازہ مطلب دعائے مغفرت، اور رحمۃ اللہ ہاں، علیہ مطلب یہی ہوتا ہے۔ جی تو جی جی، آپ اور نے ایک آدمی بہت دل بڑا میں مسئلہ بتایا ہے، ماشاء اللہ۔ ایک آدمی دل میں رکھتا بھی ہو اور زبان سے کہتا بھی وہ بھی برملا، یوٹیوب پہ ہر جگہ کوئی اس کی توبہ اور اس کا جو ہے رجوع موجود نہیں ہو، تو اب یہ یعنی آدمی صحابہ سے محبت کرنے والا کس زبان سے کہے گا؟ اچھا حضرت، یہ آپ تو ماشاء اللہ بہت اچھا مسئلہ بتایا، مجھے میرے علم میں اضافہ کر دیا آپ نے۔ جی جی حضرت جی الحمد للہ۔ یہ بتائیے، ہاں صحابہ کے شان میں گستاخی کرے یا لکھے یا پھر صحابہ ہاں کے ہاں ایمان میں شک کرے، ہاں ہاں۔ تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا؟ وہ کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا، یا پھر وہ گمراہ بدین، یا پھر نہیں، اس کے وہ اوپر گمراہ لعنت کر؟ بدین، اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن گمراہ بدین ہوگا۔ تو پھر یہ ایک کتاب بتائے ہیں ایک بھائی نے، ہاں وہ ہاں ہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں صحابہ میں سے کسی صحابہ کو کافر کہنے سے وہ ہاں۔ شخص اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ اچھا، کیسا ہے؟ نہیں یہ تو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کافر کہیں تو بھائی کافر کو کافر نہیں کہہ سکتا ہے تو کیسے مطلب صحابہ کہے گا؟ مسئلہ اوہو، یہی ہے، وہ مسئلہ پتہ کون کتاب ہے، وہ کون یہ لکھا ہے کتاب؟ ہے حضرت، یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتح فتاوی رشید، رشیدیہ ہے، یہ تو دیوبند میں بہت معتبر ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب کا لکھا ہوا ہے معتبر نا؟ ہے لیکن وہ سوال ہے کہ مطلب جواب اس میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کی بھی تکفیر ہاں کرنے والا ہاں کافر نہ ہوگا، اور ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے، اور ہاں اس قبیح فعل کی وجہ سے اہل ہاں۔ سنت و جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ ایسا شخص جیسے ایک تو ملعون بھی ہے، کافر ہاں نہیں ہے، ملعون ہے، اور اہل ہاں سنت جماعت سے خارج بھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے آپ کو میں نے نہیں نہیں، پوچھنے کے وہ لیے کال اصل کیا۔ میں اب اس میں پڑھنا پڑے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کتاب کا مسئلہ نقل کر کے پورا اس کے بعد اس کا جواب بھی نہیں لکھا ہو۔ نہیں، پورا نقل نہیں ہے، میں پورا مسئلہ آپ کا نمبر نہیں ہے ورنہ میں بھیج دیتا، اور واٹس ایپ نمبر اچھا، پہلے سیو کرنا پڑے گا، اس فتاوی کے بعد رشیدیہ کون سی جلد ہے؟ فتاوی رشیدیہ ایک مکمل ہی ہے، اس میں جلد نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ پیج ہاں نمبر ہاں۔ 272۔ تو یہ آپ جیسے کس پہ دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایف پہ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب نہیں، میں؟ میرے پاس ایک پیج کا فوٹو بھیجے ہیں، 272 نمبر پیج ہے، اس میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں نہیں، میں سمجھ گیا، اصل میں بغیر اصل کتاب دیکھے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں۔ اصل کتاب اصل نہیں میں ہے حضرت، یہ کتاب اصل کتاب میں بھی میں نے دیکھا، لیکن موبائل میں فوٹو ابھی میرے پاس نہیں ہے اصل کتاب کا۔ یہ کتاب جو نہیں پیج ہے نا، نہیں اصل کتاب میں ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں، جیسے کبھی ہوتے پی ڈی ایف میں نا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اگر اصل کتاب کی شکل میں تب اس کا اعتبار ہوگا۔ نہیں نہیں، میں اصل کتاب بھی دیکھ چکا ہوں، میں نے 1-2 اس میں مہینے سے یہ لکھا ہے۔ اس یہی لکھا ہوا ہے جو یہ ہاں فوٹو میں ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے اچھا، سنا رہا ہوں، سنیے۔ تب اس کو میں تحقیق کروں گا، اس میں نہیں جو میرے کچھ شخص، ایسا۔ ہاں سنیے حضرت، ہاں جو ہاں شخص صحابہ ہاں کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہاں ہے، ہاں ایسے ہاں شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے، اور وہ ہاں۔ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب اہل سنت ہاں جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ اچھا، بہرحال دیکھ لیجیے گا مسئلہ، اس میں تو لیکن 3 باتیں ہیں، 3 باتیں ہاں مجھے ہاں سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو اہل ہاں سنت ملعون نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ ہاں ہاں۔ جو اہل سنت ہوگا وہ ملعون نہیں نہیں ہوگا، جو بات بد وہ عقیدہ صحیح آپ ہوگا، کا، گمراہ ہوگا، وہ وہ صحیح ملعون ہے، ہو سکتا ہے، اہل سنت میں ملعون وہ مطلب ملعون ہاں نہیں ہو ٹھیک ہے، سکتا۔ ہاں، جی 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 جی۔
तो गुनहगार पर भी लानत करना जायज नहीं है ना? हाँ तो हाँ, मलऊन नहीं हो हाँ सकता। और हाँ दूसरी हाँ बात ये कि ये अहले सुन्नत जमात से भी खारिज नहीं होगा सहाबा को तकफीर करने वाला। अब ये दो ऐसा तो बातें मतलब समझ हैं। नहीं आ रहा है, ये तो मतलब पहली बार सुना। मैं निगाह से मेरी गुजरा भी नहीं कहीं। अच्छा, और एक देख हजरत, लूंगा इंशाल्लाह। हाँ आपके जुबान से हाँ। मैंने और एक बात सुना जिसको मेरे समझ में कौन नहीं आई। अभी कौन? आपके जुबान से सुना, काफिर को भी काफिर नहीं कह सकते, ऐसा कैसा? हाँ नहीं, काफिर नहीं कर, इसलिए कि हो सकता है कि मरने मरने से लोग मुसलमान हो जाए। तो जब ऐसा मुसलमान बात होगा है ना। तब मुसलमान, न मुसलमान होगा तो फिर मुसलमान को भी मुसलमान नहीं कह सकते, हो सकता है मरने से पहले काफिर हो जाए। नहीं नहीं, दोनों फर्क तो है भाई। ईमान तो देखिए कोई भी कंफर्म तो नहीं है ना, पता नहीं आपसे हाँ हमसे हाँ। बड़े बड़े पक्के नहीं नहीं, ईमान वाले असल में कहलाने वाले एक मुर्तद मिनट। हो गए। असल में इस्लाम इस्लाम और ईमान मतलूब है, उसका प्रचार और उसका जो है ऐलान होगा तभी तो लोग मुसलमान होंगे ना, देखकर सुन के। हाँ और कुफ्र जो है वो उस पर अल्लाह की लानत होती है। और काफिर को काफिर कह के पुकारा नहीं जाएगा। वो काफिर है, ठीक है। कुफ्र का उस कुफ्र के किसी को मुतय्यन करे काफिर नहीं कह सकते हैं। ये कह सकते हैं फलां जगह काफिर ऐसा करते हैं। नहीं, अभी जिन काफिर नहीं कोई वही है, हाँ, काफिर एक आदमी कोई काफिर है, है, ठीक है। उसको हम हाँ तो काफिर क्यों क्यों नहीं कहेंगे? वो तो काफिर है तो काफिर कहेंगे। अल्लाह फरमाया कुल या का, अय्युहल काफिरून। भाई वो मजबूरी तौर पर कहा गया था, अगर मुतय्यन की कहा गया है मुतय्यन जैसे बगैर अबू जहल अबू लहाब इनको भी मुतय्यन करके काफिर कहा गया ना, वही यहूदियों वही को बात, ये काफिर कहा सुनिए। गया। अरे भाई बात सुनो, बीच में नहीं टोका जाता, पहले बात पूरी सुन लो। सुनाइए। वही मैं कहने जा रहा हूँ, जिनका कुफ्र नस से साबित है, हाँ कुरान हदीस जिनका कुफ्र साबित है, हाँ उनको काफिर कहा जाएगा। जी हाँ, और जिनका यकीन है कि वो कुफ्र पर मरा है, तो हाँ। उसको काफिर कहा जाएगा। अभी कोई जैसे गंगाराम, फिरौन। हाँ कोई गंगाराम एक है, मिनट, एक मिनट सुनिए, मिलिए। है कोई गंगाराम है, उसको काफिर नहीं कहेंगे? ये बतिया सुनो, पहली बतिया पूरी हुई भी। हाँ बोलिए। जैसे एक आदमी कुफ्र पर मरा है, हाँ तो वो यकीन है कि हाँ कुफ्र पर मरा है, तो उसको कह सकते हो फला काफिर मर गया, ठीक है। हाँ और एक आदमी की नस से साबित, जैसे कुरान से फिरौन, हामान, सद्दात, कारून, ये सब है, इनका कुफ्र जो है कुरान हदीस से नस से साबित है, जी। इनको काफिर कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप कैसे कह सकते हैं ये काफिर है? यकीन नहीं है ना आपको। अब ये गंगाराम है मेरे सामने, हाँ तो ये हाँ। गंगाराम को काफिर नहीं कहेंगे? भाई नाम से तुरंत काफिर होगा। अब वो गंगाराम है, वो पूजा करता है, पत्थर का पूजा करता है, वो काफिर नहीं है? पूजा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको काफिर कह के पुकारेंगे नहीं, मुतय्यन तौर पर नहीं नहीं कहेंगे भाई, ए काफिर लोगों को यहाँ आओ। निशानदेही करेंगे ना, ये काफिर है। लोगों की निशानदेही करेंगे भाई, ये इस्लाम लोगों का के था, सामने गैर बताएंगे मुस्लिम ना है। भाई ये काफिर है। अब कादियानी है, यहाँ आसपास में, मैं जहाँ रहता हूँ आसपास के तो इलाके में कादियानी अरे जो भाई है साजिश करके। ओहो, अच्छा आप इसी कादियानी को बरमला कहा जाए काफिर, इसलिए कि वो देखो, एक होता काफिर, एक होता मुर्तद। हाँ कादियानी जो मुर्तद है वो, हाँ तो मुर्तद को बरमला ऐलान है मुर्तद को, इसलिए उसकी सजा भी बहुत सख्त रखी हुई है इस्लाम में। तो हाँ। मुर्तद और काफिर फर्क है, मुर्तद है काफिर है। काफिर हम्म, वो जो इस्लाम कबूल ही नहीं किया है, और हाँ मुर्तद वो जो इस्लाम कबूल करके फिर जाना उजुबिल्ला। हाँ तो मुर्तद को बाकायदा मुर्तद कहा जाएगा। हाँ। हाँ, शरीयत में सबके अलग अलग दर्जे रखे हैं, उसमें तो इस तरीके से काफिर अकल से नहीं चलना जाएगा। ऐसे जैसे मसला है बेहश्ती जेवर में, हाँ हाँ काफिर का जूता भी हाँ पाक है, तो वो किसको काफिर हाँ। कहा? भाई मजमूई तौर पर कहा गया है, किसी को मुतय्यन करके नहीं कहा गया है, एक मजमूर जमात तो, को कहा गया है। जैसे हाँ, अगर मिसाल के तौर पर हमारे सामने कोई काफिर पानी नहीं नहीं, छूटा कर दे। बात सुनो, बात बड़े बड़े सुनो। जैसे हाँ एक आदमी जोलहा है, जोलहा है, ठीक है। हाँ लोग किसी को मुतय्यन तौर पर कहोगे कि ये जोलहा बहुत कमीना है, हाँ तो ये जोलहा जो है बहुत ऐसे होते हैं। तो एक हाँ होता है कि जोलहा जमात को कहें कि जोलहा जमात वाले ऐसे होते हैं, पूरे कमेटी का नाम लिए हुए, तो आदमी हाँ। बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन एक आदमी मुतय्यन तौर पर कहेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तो इसलिए जोलाहा, काफिर एक जोलाहा मिनट। एक पेशा जो जोलाहा का काम करते हैं, वो काम को भी गलत नहीं कह हाँ, सकते ना? गलत कैसे कह सकते हैं? काम को नहीं काम कह को रहे भी हैं, गलत जैसे नहीं कह सकते, उस पेशा को भी गलत नहीं कह सकते, पेशा वाले को भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन बात नहीं यहाँ ईमान और कुफर की, आप कह रहे हो सकता है मुसलमान हो जाए, जैसा ये अरे मसला। मेरी बात काफिर, सुनो काफिर को मेरी बात मुसलमान, सुनो। काफिर को अगर कहेंगे काफिर, अरे तो यार, आप कह रहे हैं काफिर को काफिर नहीं कह आप ही सकते, बोलने में, फिर क्या कहेंगे क्या उसको? बोलूं। उसको सब आप ही मुसलमान बोल रहे हैं, आप ही कहेंगे? समझा रहे हैं, बात समझ नहीं रहे आप। नहीं, मैं देखो समझ में शरीयत आएगा में तब तो जी, मैं आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
काफिर को काफिर आप ना कहो नहीं कह नहीं, रहे हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए आप बीच में बोलते रहते हैं, सब पूरी बात होने नहीं देते हैं। पूरी बात मैं सुनाइए पूरी आप बात मुझे, अभी किया काफिर नहीं, को आप काफिर कैसे क्यों नहीं पूरी कह सुनाऊं? सकते? वही तो मिसाल लेके समझाने जा रहा था, अब जुल्हा की मिसाल दे रहा था, अब उसी में टोकने लगे, जुल्हा तो काम उनका सही है, मैं उससे क्या कहता, आप खामोश रहते ना। हाँ। आप ऐसा कीजिए, दारुल इफ्ता करीब में कहीं है आपके यहाँ? नहीं, दारुल इफ्ता नहीं, आप ही मुझे समझा दे काफिर को काफिर क्यों नहीं कह सकते। मैं मुझे तो आपको नहीं ये समझा काफिर सकता, को फिर आप मोमिन बीच कहेंगे। भाई, आप जो है बीच में बोलने के इसलिए कोई समझा नहीं पाएगा मैं आपको। अभी बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए काफिर को काफिर क्यों नहीं कह सकते। मसला लिखा है नहीं कैसे, बस यही समझना आपकी मसला बस। कहीं लिखा हुआ आज तक मैंने पढ़ा नहीं, बहुत सारी किताबों में ढूंढा, बहुत सारे उलमा, तो सिर्फ देवबंद के उलमा बोलते हैं काफिर को काफिर नहीं कह भाई, सकते, बाकी बरेलवी उलमा, दूसरे फिरके के उलमा नहीं बोलते ये मसला। हम देवबंदी वाले कहाँ बात ला रहे हैं भाई? नहीं, आप देवबंदी है ना? आप बरेली है क्या? हम बरेलवी है। बरेली भी है? हाँ, हम बरेली भी हैं। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दारुल इफ्ता वहाँ कहीं है, दारुल इफ्ता में जाओ पूछो। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि देवबंद वाले ये मसला क्यों बताते हैं। मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। हमारे बरेलवी उलमा तो बोलते काफिर को काफिर कहो, यहाँ तक कि नहीं भाई, जिसके कुफरिया अकीदा, एक भी किताब में कुफरिया अकीदा है उसको भी काफिर कहो, नहीं यहाँ से कहने का नहीं है, हुक्म जिसके देते हैं। भाई अगर 99 मसला कुफ्र का निकल रहा है, एक मसला ईमान का है, तो उसे भी काफिर नहीं कहा जाएगा। तो फिर ये कादियानी का एक ही मसला तो एक कुफर वाला है, बाकी तो वो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, भाई फिर कादियानी को वो काफिर क्यों मुर्तद है। कहेंगे? आप ऐसा तो काफिर कहीं मुर्तद नहीं समझ है। नहीं रहे हैं। एक आप मसला समझ नहीं, क्या, कोई आपको कोई शरीयत समझा का नहीं एक पाएगा। चीज का इनकार कर दे वो काफिर हो जाता है कि नहीं? अरे भाई, इस बात समझ नहीं रहे आप। मैं कह रहा हूँ आपको कोई समझा नहीं पाएगा फोन पर। आप सही मसला नहीं बता रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि 99 एक कुफर का मसला है तो वो काफिर नहीं कह सकते, हालांकि एक कुफर करे तो भी काफिर होता है। 99 मसला अरे कुफर भाई, का नहीं है। यहाँ मेरी बात मैंने सुनो। पढ़ा था नहीं सुनो आप, कि बस तुम सुन ही नहीं रहे हो। सुनाइए, भाग गए कॉल काट के, मौलवी साहब तो भाग गए। बताइए, 99 मसला ईमान का है, एक मसला कुफर का है, तो बंदा काफिर, उसको काफिर नहीं कह सकते। बताइए कितना जाहिल है ये, कि लिखा है एक लफ्ज का माना, वह 99 मसला नहीं है, एक लफ्ज का माना 100 है, एक लफ्ज का 100 माना है, एक माना ईमान की तरफ है, 99 माना कुफर का है, तो हम ईमान वाला माना समझेंगे। एक लफ्ज का माना 100 माना है, तो अगर 99 कुफर वाला मसला है, कुफर वाला माना है, एक माना ईमान वाला है, तो हम वो एक ही माना ईमान वाला लेंगे जब तक वो बंदा जाहिर न कर दे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कुफर वाला मतलब है वो मतलब मेरा है, तब उसको काफिर कहा जाएगा। जब वो वाज़ेह कर देगा मैं कुफर वाला मतलब ले रहा हूं, तब उसको काफिर कहा जाएगा। लेकिन अगर 99 माना कुफर का है तो भी उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। ये माने के पर ऊपर है, ना कि मसला पर। अगर कोई एक कुफर कर देगा तो क्या काफिर ना होगा? काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुफर जर्रा बराबर भी कुफर कर दे तो काफिर होता है। एक कुफर करे तो भी काफिर होता है, 100 कुफर करे तो भी काफिर होता है। कुछ लोग आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहा कि हम आपकी हर बात मानेंगे, हर नबी पर ईमान लाएंगे, लेकिन हम सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया। अल्लाह ने कुरान में उनके ऊपर उनके खिलाफ आयत नाजिल फरमाया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। यह आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया कि हम ईमान लाने में किसी नबी से फर्क नहीं करते, हर नबी पर ईमान लाना है, तुम्हारा ईमान कबूल नहीं है। तुमको अगर मुसलमान होना है तो ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाना पड़ेगा, ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानना पड़ेगा। तो ये हो गई ईमान और कुफर का मसला। अगर एक कुफर करे तो भी काफिर होता है, लेकिन देवबंदियों के नजदीक ये कुफर कितना भी करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अकाबिरीन के कुफर का ये लोग बचाव करते करते इस हद तक पहुंच गए हैं, इनको कोई कुफर लगता ही नहीं। ईमान क्या है, ईमान की हकीकत ये जानते भी नहीं। खामखा अल्लामा मुफ्ती मौलाना मुहद्दिस बने फिरते हैं ये लोग, और कहते हैं इनके पास बहुत इल्म है। अब देख लो कितने बड़े बड़े जाहिल है देवबंद में।
ये देवबंद के बहुत बड़े मदरसे के ये मोहतमिम है, शेखुल हदीस है। अल्लाह ताला इन खबीसों को गारत करे कि इनको कोई काफिर ना कहे, और क्या, ये अपना बचे रहे। जब इनको कोई काफिर कहेगा तो उसको यही कहेंगे काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। हाँ। हम तो नमाज पढ़ते हैं। अपने कुफ्र को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए, और दूसरे मौलाना को, दूसरे देवबंदी को लगाइए। कौन सा बोल रहे हैं? ये खैरियत से है हजरत? जी जी, हाँ जी जी, बोल रहे हैं जी। मेरा नाम तौसीफ है। मेरा नाम तौसीफ है, यूपी से बोल रहे हैं। जी 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 जी। तो ये हजरत, तो हमको ये पता करना था कि आप देवबंदी है कि नदवी हैं? मैं तो काफी हूँ देवबंद। तो ये जो नदवी साहब जो अभी इंतकाल फरमा गए हैं, इनको बहुत सारे उलमा जो है कि बोलते हैं कि ये सहाबा के गुस्ताख थे, तो इनका इसाली सवाब मत करो। और बहुत सारे उलमा तो इन पर लानत भेज रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है हजरत, किस तरफ जाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक इशारे सवाब कर सकते हैं, लेकिन सहाबा का जो गुस्ताख है तो उसका भी ये तो समझ में आया ना। सहाबा के बारे में जो हट के बात कर रहे थे, जो जमहूर उलमा का अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, उससे हटकर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। अलबत्ता वो पूरे सहाबा को नहीं कह रहे थे, कुछ सहाबा को कर रहे थे। ठीक है ना? जैसे कि हजरत अमीर माविया है और भी हैं, उनके बारे में है। तो असल में, हाँ, असल में उनकी हक़ाइक़ पर रोशनी नहीं। अच्छा, अगर ये हक़ाइक़ पर रोशनी होती और तो ये बात न कहते और न कहते ना। अच्छा, हाँ, वो देखिए, सलाहियत और अलग चीज है, काबिलियत एक अलग चीज है। ठीक है, किसी फन में महारत अलग चीज है। ठीक है ना? लेकिन सहाबा के बारे में अदना सी गुस्ताखी ये अहले सुन्नत जमात के खिलाफ। अहले सुन्नत के वो मुसलमान रहेगा कि नहीं? जैसे कि जो ये तो मान लीजिए एक सहाबा के जो कहे कि ये किसी सहाबा को काफिर कहने से काफिर नहीं होगा, तो वो जैसे मान लीजिए कोई कहेगा तो इसमें नहीं, सहाबा को काफिर कहने से काफिर नहीं होगा वो। जैसे हम अगर सहाबा काफिर कहेंगे तो हम काफिर नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखिए, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि सहाबा की तकफीर, सहाबा को अगर वो न माने, वो तो सहाबा को न माने तो ये अलग चीज है। उनको बुरा भला कहना ये अलग चीज है। हाँ, लेकिन हमने मौलाना साहब से सुना है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर बोलता है तो सामने वाला अगर काफिर नहीं है तो वो कहने वाला काफिर हो जाएगा। हाँ, वो उस पर आ जाएगा। तो अगर कोई सहाबा तो जिंदगी उनका तो अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान से साबित है, बिल्कुल भी एकदम सही। तो अब उनको अगर कोई काफिर कहेगा तो वो काफिर क्यों नहीं होगा? आप बोल रहे हैं तो ये तो गड़बड़ है फिर। नहीं, मौलाना सलमान साहब को काफिर कोई नहीं कहता, उनकी तकफीर नहीं है। नहीं, हमने एक किताब पढ़ा था, उसमें लिखा, वो कौन सा किताब था वो बता दीजिए तो। किताब मौलाना साहब, वो फतावाए रशीदिया है, फतावाए रशीदिया है, 274 नंबर पेज है, उसके अंदर लिखा हुआ है सहाबा में से किसी सहाबी को भी काफिर कहने से काफिर नहीं होता है। और वो शख्स अहले सुन्नत लिखा हुआ, ये तो किताब को पहली बार हम सुन रहे हैं। ये लिखा हुआ है और अहले सुन्नत से भी खारिज नहीं होगा। और अगर अहले सुन्नत में है फिर अहले सुन्नत को मलऊन भी कह रहे हैं। ये जो पेज है उनको भेज दीजिए, ये जो मौलाना है उनको भेज दीजिए, इसमें लिखा हुआ है। मौलाना सलमान साहब है, मौलाना सलमान साहब है, दारुल देवबंद से। जी।
बड़े मौलाना हैं ये। अच्छा तो भेज दीजिए मौलाना साहब को, मौलाना साहब देख के जरा जवाब दे। ये फतावा रशीदिया है, रशीद अहमद गंगोही। और अगर सलमान नदवी गुस्ताख है तो रशीद अहमद गंगोही गुस्ताख क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। जी। तो जरा देख कर बताइए। तो तौसीफ भाई जरा फतावा रशीदिया में है कि साहबा कराम को काफिर कहना वो काफिर नहीं होगा। मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ हजरत, एक मिनट आपको इबारत पढ़ के जरा सुना रहा हूँ, सुनकर जरा आप तसल्ली से जवाब दें। सवाल भी आप पढ़िएगा, तो सवाल भी पढ़िएगा। मैं जितना मेरे पास है उतना मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए। यह उर्स के ताल्लुक से और सहाबा इकराम के ताल्लुक से दोनों सवाल किया गया था, जवाब दिया जा रहा है। उर्स का इल्तिजाम करे या ना करे बिदात और नादुरुस्त है। तायुन तारीख से कब्रों पर इज्तिमा करना गुनाह है, खा और लघुवियत हो या ना हो। जो शख्स, और इसका मतलब अभी ये उर्स के ताल्लुक से जो सवाल किया उसका जवाब दिया, और उसके बाद लिखा है और जो शख्स सहाबा इकराम में से किसी की तकफीर करे वो मलऊन है। ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है और वो अपने इस कबीरा गुनाह कबीरा के सबब अहले सुन्नत जमात से खारिज न होगा। सहाबा की बात कहाँ से आ गई है? सहाबा में से किसी की तकफीर करे वो शख्स काफिर न होगा। तो और ऐसे शख्स जो इबारत आप पढ़ रहे हैं उसमें तो सहाबा का नाम नहीं है ना। सहाबा में से किसी की, यानी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक किसी की भी, आप किसी की तकफीर करने से काफिर कैसे ना होगा। सहाबा का ईमान अगर कतई है, सहाबा के बारे में जहां अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो ईमान वाले कौन थे सामने? सहाबा ही थे। इसके अव्वलीन मिस्दाक तो सहाबा थे। तो जब सहाबा को अगर इनकार कर रहा है, इसका मतलब कुरान की आयत का इनकार हो रहा है। नहीं देखिए ऐसा है ना। और इसका तारिक जमील साहब ने बयान किया कि मैंने अपने बुजुर्गों की किताब से पढ़ा है कि तमाम सहाबा को काफिर कहने से कहने वाला काफिर नहीं होता। ये तारिक जमील का बयान भी है, तारिक जमील साहब का बयान भी है इसमें, इसी बारे में। बाद में उन्होंने रुजू भी कर लिया इस बयान से। अच्छा हाँ, तो लोगों ने जब बहुत ज्यादा धुतकारा लोगों ने, तो बाद में रुजू भी कर लिया। तो उनको जब रुजू करना पड़े तो ऐसे इबारत लिखने वाले तो गुस्ताख होगा। जी तो चलिए मैं देखूंगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। आप कर्नाटक से बोल रहे हैं? जी। अच्छा। तो हजरत और एक मसला था, ये मेरे हाथ में बराहीन कातिया है। बराहीन कातिया लिखने वाले हैं हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही कुद्दस सिर्रहू, और ये किताब छपी है दारुल किताब देवबंद। हाँ, तक ये हमारे कॉल खत्म होने के बाद आपको इस किताब का फोटो भी भेज देंगे। हाँ, तौसीफ भाई यहाँ अगर व्हाट्सएप नंबर है तो मौलाना साहब को भेज दीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, ये बताया है इसमें। बराहीन कातिया पेज नंबर 117। अरे ये बातें जो है असल में ये मौलाना ये है, किसका नाम बताया आपने? मौलाना इस्माइल शहीद का? नहीं, रशीद अहमद गंगोही की किताब है ये, बराहीन कातिया। जी, बराहीन कातिया है ना? हाँ, बराहीन कातिया। अच्छा ठीक है। ये सारे सवालात जो आपने ये बताए हैं जी, ये लिख करके भेजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है ना?
हाँ अच्छा ये बताइए ये नंबर कहाँ से मिला मेरा वाला? कोई पोस्टर में देखे थे तो हमने कहा कि मौलाना से जरा बात कर लें, क्योंकि हमारे पास किताब भी है, तो मैंने सोचा कि किताब जरा समझना है, क्योंकि बरेली भी उलमा एतराज कर रहे थे, तो हमने सोचा कि किताब हम खरीद लें ताकि हम खुद समझ लें बरेलवियों का एतराज सही है या गलत है। तो हमने जो अच्छा ठीक है, बरेलवी लोग जो एतराज देखिए। करते हैं वही चीज हमें किताब में भी मिली, तो इनका अच्छा एतराज देखिए, करना तो सही लग रहा है। नहीं ये इबारत जो वो बता रहे हैं ये वो इबारत है नहीं है। पहली बात तो ये जो हाँ असल किताब की जो इबारत है वो इबारत है नहीं है। दूसरी बात ये जो इबारत वो बता रहे हैं वो मुसन्निफ का वो मतलब ही नहीं है। अब या तो इबारत पहले सुनिए, किताब जो हम देवबंद से जी खरीदे, असल किताब ये जी मेरे हाथ में जी है, मैं देवबंद से खरीद करके देवबंद से मंगाया हूँ। हाँ, मनी जी ऑर्डर करके देवबंद से मंगाया, दारुल किताब देवबंद। हाँ, जी। अच्छा अच्छा तो इसमें जो लिखा है ठीक है। इबारत पहले सुने और मुझे जरा समझा दे, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, इबारत जरा समझा दे। ये इबारत है, अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ नुसूस कतइया के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को यह वसात नस से साबित हुई। फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसात इल्म की कौन सी नस्स कतई है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है। ये इबारत हुई। अच्छा ये इबारत तो इसमें ये बताया ये है, मुझे मेरी समझ में ये आई जी है जी इस इबारत से कि शैतान और मलकुल मौत को जमीन के इल्म मुहीत हासिल है। यानी इल्म मुहित बोले तो सारे जमीन के हर चप्पा चप्पा हर जर्रा जर्रा के इल्म शैतान को और मलकुल मौत को हासिल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई सबूत नहीं है, और अगर मानेंगे तो शिरक होगा। तो मेरा कहना यह है कि शिरक तो वो होता है जो किसी मखलूक में ना पाई जाए, तो हम अगर किसी मखलूक में साबित करेंगे तब शिरक होगा। अब ऑलरेडी एक दो मखलूक को साबित है, तो वो सिफात अगर नबी के लिए मानेंगे तो शिरक नहीं होगा ना, क्योंकि शैतान के लिए तो माना जा रहा है कि शैतान को इल्म मुहीत हासिल है और मलकुल मौत को भी इल्म मुहीत हासिल है। तो दूसरे मखलूक को अगर मानेंगे तो शिरक कैसे होगा? शिरक नहीं होगा। और कह रहे हैं दूसरी किताब में मैंने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। उल्लिम तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन का और आखिरीन का उलूम दिए गए। तो अब अव्वलीन में तो मलकुल मौत भी है, तमाम फरिश्ते हैं, और जिन्नात और शयातीन और तमाम इंसान और सब कुछ अव्वलीन आखिरीन में शामिल है। सबका उलूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। अब ये कैसा छूट गया कि ये इल्म अल्लाह ने शैतान को तो दिया, मलकुल मौत को दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया, तो फिर वो हदीस झूठी हो जाती है। देखिए ये बहस जो है ये हाँ बहस जो है इल्म गैब की बहस है। ये हाँ इल्म गैब जानते हैं ना? हाँ, इल्म गैब तो जानता हूँ थोड़ा बहुत। इल्म गैब अल्लाह के नबी को इल्म गैब है करके हम लोग मानते हैं। माँ काना व मा यकून, जो जी पहले हो चुका और जो होगा। हाँ जो पहले हो चुका और जो होगा, हाँ जो कुछ भी है वो, क्योंकि देखिए अल्लाह तबारक व तआला का इल्म गैब जाती है। हाँ अल्लाह का इल्म जो है जाती है, हाँ और
मखलूक का इल्म जो है वो अताई है, जी ठीक है ना। जी अल्लाह ताला की कोई चीज गैब नहीं है। जी। तो अल्लाह तो आलिमुल गायब है, गायब का जानने वाला है। जब गायब है अल्लाह ही ताला के नहीं, लिए अल्लाह के लिए तो कोई अल्लाह गायब नहीं है, हर चीज अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है। तो अल्लाह हर को चीज गायब देख रहा कैसे है, तो कहा जाता है, आलिमुल गायब। अल्लाह के लिए तो कोई चीज गैब ही नहीं है। जी सारा का सारा जो है वो अल्लाह के मालूमात में है, अल्लाह की नजर में है, अल्लाह के इल्म में है। जी तो जो चीज अल्लाह के इल्म में, देखिए अल्लाह जो है वो खालिक है, बाकी है मखलूक है। जी। तो मखलूक में सारी चीजें आती है कि नहीं आती? कौन छोटा है मखलूक में? हाँ, हर मखलूक में सारी चीजें हैं, अल्लाह को छोड़कर बाकी सब मखलूक हैं। बाकी सब मखलूक है ना। हाँ तो जो सिफात अल्लाह के लिए लाजिम है वो मखलूक कैसे हो जाएगी? अब रही बात ये कि जो अताई इल्म गैब है वो जी सरकार दो आलम सल्लम को अता किया गया है। जी। अताई तो सभी मानते हैं, हाँ सभी लोग मानते हैं अताई। जाति नहीं मानते हैं, अताई मानते हैं। हाँ, हम लोग भी अताई मानते हैं, जाति नहीं मानते। जाति नहीं मानते, अताई मानते हैं। हाँ, ये अलबत्त सारी मखलूक से अफजल और बढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु को इल्म दे दिया गया। जी हजरत। तो जब सारे मखलूक से ज्यादा दिया गए, तो ये इल्म मुहित जिसके बारे में यहाँ बहस चल रही है, तो इल्म मुहित आपकी किताब में जो लिखा हुआ है कि इल्म मुहित शैतान और मलकुल मौत को नस्से कतई से हासिल है, नस से साबित है। नस मतलब इल्म मुहित को का आपने क्या समझा? इल्म मुहित बोले जमीन के हर जर्रा जर्रा का इल्म, जहाँ नहीं इल्म मुहित जमीन क्या मतलब है? इल्म मुहित जमीन, इल्म मुहित का मतलब ये है कि उसका दायरा महदूद है। महदूद जमीन का, ये लिखा हुआ है जमीन के इल्म मुहित, यानी सारे जमीन के पूरा जमीन घेरा हुआ। मुहित का मतलब घेरा हुआ है, तो घेरा हुआ है, मुहित का तो मतलब घेरा हुआ है। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जमीन बड़ी है कि पूरा आलम बड़ा? यहाँ तो बात चल रही है हजरत, ये जो इबारत मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसमें जमीन की बात चल रही है। जमीन के बाहर भी आलम है, दूसरा आलम है, आलम दूसरा बहुत सारे आलम है ना। तो मुहित हुई ना, एक महदूद है। मतलब तो इसका इल्म अल्लाह ने नबी को नहीं दिया, और फरिश्तों को, मलाकुल मौत को दिया है, और शैतान लाइन को दिया है। यही आप कहना चाहते हैं? आपकी किताब में यही लिखा हुआ है। नहीं, इसका बात बताइए। वो तो किताब सामने होगी तभी उसको समझ आएगा। वो किताब तौसीफ भाई जरा भेज दीजिए मौलाना साहब को। बराह कहते जाए। ठीक है, ऐसा है ना कि आप वो लिख के भेजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको तफसील मौलाना इलियास गुम्मन साहब को जानते हैं आप? हाँ, इलियास गुम्मन साहब का मैंने सुना। उन्होंने तो वो मुझे जो इबारत के बारे में एक बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे हमारी किताब में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो हमने किताब निकाल के देखा तो किताब में तो लिखा हुआ है। इलियास गुम्मन साहब ऐसा झूठ बोलते हैं, मजमा में पब्लिक में झूठ बोलते हैं। नहीं, उनकी किताब उनके सुनिए, बयानात सुनिए, वो उससे काफी वो तो हमने इलियास का सुनिए हजरत मौलाना साहब, हम बरेली भी उलमा के भी सुनते हैं, आपके भी सुनते हैं। तो हमको तो जब आपका सुन के हम बरेली भी उलमा का सुनते हैं तो फिर हमको लगता है कि जरा झूठ लग रहा है ये बातें। आप बताइए झूठ नहीं, आप ये बताइए कि आप बरेली मसलक से ताल्लुक रखते हैं या कि देवबंद से ताल्लुक रखते हैं?
हम तो देखिए तहकीक करना चाहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हर उलमा का नहीं, सुनना सुनिए चाहिए। सुनिए, आंख बंद करके अगर आप कहीं सुनते रहेंगे तो बरेलवी उलमा नहीं भी तो कुछ सुनिए, बोल रहे हैं, वो भी सुनना चाहिए। नहीं सुनिए, पहले आप बरेली उलमा से ताल्लुक रखते हैं कि देवबंद के उलमा से ताल्लुक रखते हैं? हजरत मुझे आपसे भी तो ताल्लुक है, तभी तो आपको कॉल किया हमने। नहीं सुनिए, ताल्लुक तो आपसे भी मेरी बात है, सुनिए। बरेलवी उलमा से भी ताल्लुक है, क्योंकि हक देखिए हम तो किसी मौलवी का कलमा नहीं पढ़े, हमको हक जानना है, कौन मौलाना हक बोलते हैं वो हम जानना चाहते हैं। अब ये जी किताब जी अगर जी गलत जी है तो हम इनको अकाबिर समझ के हम इनको बर्दाश्त कर लेंगे, इनकी बातें हम गलत बात को भी सही ठहराएंगे, तो ये तो ईमान नहीं है। जी। ईमान का तकाजा ये है चलिए ठीक है। अल्लाह और रसूल अगर पर हम ये फिदा हो जाएं। देखिए, आपने जो कॉल किया है वो तहकीक के लिए क्या है, इसको इस मेरी बात को वीडियो वीडियो बना के मत डालिएगा, ठीक है? न जो भी है हेलो, आप हमें तहकीकी जवाब नहीं दें, कल फिर कॉल करूंगा। नहीं हम वीडियो जब तक नहीं नहीं डालेंगे नहीं जब तक आप नहीं हमें तहकीकी जवाब देंगे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप। इसको वीडियो में डालने की कतई इजाजत नहीं है। लेकिन आप आप हमें अगर हक बताएंगे। नहीं देखिए सुनिए, हमें नहीं अगर नहीं, मेरी आप बात हक सुन लीजिए। बताएंगे तो हम वीडियो पे अगर नहीं डालेंगे, आप लेकिन अगर हम हक नहीं आप बताएंगे तो फिर हम आपकी इजाजत के बगैर भी वीडियो डालेंगे। नहीं नहीं, वीडियो डालने की, क्योंकि मेरा नहीं, हम मुखारफ आपके नहीं देखिए अगर हूँ आप मैं। हक बोलते हैं तो हम आपकी कदर करेंगे, आपसे इजाजत लेंगे, और अगर आप हक नहीं वो बोलेंगे तो फिर हम आपके इजाजत का मोहताज नहीं। हम भी जो भी डालना है डालेंगे, हम अपनी मर्जी से डालेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इजाजत नहीं है। ये हमारा एक इदारा बहस करने का दूसरा है। हम इन मौजूदात पर हमारे जो बड़े हैं आप वो मौजू जो है कुछ भी बात करें, करते हैं। हमारे नबी की शान में यहाँ गुस्ताखी हुई है। इस किताब में जो बराहीन कातिया जिसकी बात हो रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, उलमा देवबंद ने गुस्ताखी किया है, और उस गुस्ताख उलमा को आप दिफा कर हाँ, रहे हैं। ये ये बात तो हमारे जो बड़े हैं वो इस हिसाब से वो आपसे बात करेंगे। बात और करते नहीं, आपकी बड़े को फोन करे तो बात करते नहीं, कोई भी बात करे तो हम उनसे बात कर लेते हैं। समझना चाहते हैं तो हमको समझाने वाला कोई भी आज तक देवबंद के नहीं मौलाना नहीं नहीं, मिले। अब मेरी बात को हाँ आप छोड़ दीजिए। चलिए चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, ये मौलाना तो डर गए। हाँ, वीडियो डालने से ही मना कर रहे हैं। तो अगर इतना ही डर है, अल्लाह का डर रखो, अल्लाह को डरो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, और इतनी बदतरीन गुस्ताखी किया है देवबंद के उलमा, फिर भी ये लोग अपने उलमा को मानते हैं और हमें कहते हैं इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम्हारी इजाजत का हमको कोई जरूरत नहीं है, तुम इजाजत दो या ना दो, तुम्हारे धज्जियां उड़ाते रहेंगे देवबंद के उलमा की, इस तरह रुसवाई होती रहेगी। और अगर रुसवाई से बचना चाहते हो दुनिया में आखिरत में, तो तौबा करो, देवबंदियत छोड़ो। और जो भोले वाले आवाम देवबंदियों के जाल में फंसते जा रहे हैं वो देख लो। मेरे भाई, अभी भी वक्त है, जहन्नम से बचना है तो देवबंदियत से दूर रहो। ये देवबंदी धोखेबाज मक्कार है, ये लोग अपने मौलवियों का कलमा पढ़े हैं, नबी का कलमा नहीं पढ़े। अगर जर्रा बराबर नबी की मोहब्बत इनके दिल में होती तो ये लोग सोचते कि देखो शैतान के लिए इल्म माना जा रहा है और वही इल्म नबी के लिए इनकार किया जा रहा है। बताओ, कह रहे हैं नबी को अगर मानेंगे शिरक होगा, शैतान के लिए मान रहे शिरक नहीं हो रहा है। क्योंकि देवबंदी उलमा को शिरक किसे कहते हैं पता ही नहीं चल रहा है, इनको पता ही नहीं। गंगोही जैसे इनके मुजद्दिद है, उनको पता नहीं चल रहा है कि शिरक किसे कहते हैं। अरे भाई, जो एक मखलूक के लिए मानेंगे शिरक होगा, वही सिफात दूसरे मखलूक के लिए मानेंगे तो भी शिरक होगा। यहाँ नबी के लिए मानने पर शिरक हो रहा है, शैतान के लिए मानने पर शिरक नहीं हो रहा है। असल में देवबंदियों को मोहब्बत शैतान से है, इसलिए ये लोग शैतान के इल्म को मान रहा है, और नबी के इल्म को मानने पर इनके पेट में दर्द हो रही है, और कह रहे हैं नबी के लिए अगर मानेंगे तो शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। अरे हमारा ईमान यही है, हम नबी के लिए खुदा के बाद
बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। आज भी सरहद शरीफ में हजरत के दरगाह के ऊपर यह इबारत लिखी हुई है कि या रसूल अल्लाह, आपका मकाम खुदा के बाद है, और खुदा ताला ने अव्वलीन व आखिरीन का उलूम हुजूर को अता फरमाया है, मा काना व मा यकूनु अता फरमाया। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, और भी दीगर अहादीस की कुतुब में बेशुमार हदीसें हैं जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मा काना व मा यकून साबित होता है। यानी जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, हर चीज हमारे आका जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला देवबंदियों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन।